Namaskaram this time. Can I get a reply this time at least? We'll begin with remembering Lord Ganesha, the auspicious Lord of all auspicious things. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Devo Sarvakaryashu Sarvada. Today is the day to celebrate hard work. I welcome all of you to MBA Pathshala's first ever Achievers Meet 2025. I'm not sure how many of you noticed what was written on the walls of the hotel while coming here. Did you? Yeah. Who is the saint that Vivanta is celebrating? Kabir. So I'll start with Kabir. At least my regular students know I'm a Kabir fan. And it is no coincidence that we are having our event in this hotel. I will call it divine intervention. So I'll begin with what was written on the fourth pillar on your left hand side if you came from the reception. It says, Shram se hi sab kuch hot hai, bin shram mile kuch nahi, seedhe ungli ghee jamo, kabsu nikse nahi. Diligence yields everything. Diligence yields results. Nothing can ever be accomplished without hard work. Frozen butter cannot be extracted if you use a straight finger. Achievers Meet is all about the hard work of our achievers, and I would like to have a big round of applause for all of you and welcome you here. To begin with, I will call upon Mr. and Mrs. CEO for Saraswati Vandana, because in the education industry, nothing happens without Ma Sharda's blessings. May I please request Udit sir and Suman ma'am to come and light the lamp and do Saraswati Vandana. Ya kundendu tushara hara dhavala, ya shubhra vastra vrita, ya veena varadanda mandita kara, ya shveta padmasana, ya ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। That was an auspicious beginning indeed, and I am sure that the people who are now entering into these schools, as well as the people who are now preparing for CAT 2025, will need Ma Sharda's blessings now more than ever. Agreed? Yes. I am not sure how many of you knew about MBA Pathshala 2 years ago or 1.5 years ago. It is still a new baby. We are still in our infantile state. We have just started walking. We were quite literally on all our fours last year, and this year probably we have become sort of bipedal. The man behind this entire vision is somebody who's absolutely young, passionate, and energetic in what he does, and I'm sure all of you will agree with it. Yes. I don't know how many of you know, but his vision started from his living room, and today he is somebody who has been awarded as the EdTech Visionary of the Year 2025. May we please hear it for Mr. Udit Singh.
Before we honor the people who have cracked various exams this year, I would like to call upon Udit sir to come and talk to you heart to heart for a few minutes, and then we can get the ball rolling with the remaining event. Please come over, Udit sir. Hi sir. Good evening guys. और सबसे पहले मैं आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को MBA पाठशाला के बारे में पता होगा, बट शायद ये नहीं पता होगा कि ये एक जर्नी है, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट की थी 2022 में, ठीक है। मतलब मेरे को लिटरली अभी भी मैं कल डिस्कशन कर रहा था हमारी टीम से, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियोस डालना, और जब बात वो एकेडमिक कंटेंट की आती है ना, तो वो और भी अच्छा लगता है कि यार जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज में बच्चों को कहीं ना कहीं किसी के थ्रू दे पा रहा हूँ, और यूट्यूब से अच्छा मीडियम भी था। मैंने 2017 में, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे विजय सर भी हैं, तो विजय सर फर्स्ट फैकल्टी थे जिन्होंने मुझे अपने कैट बैचेस में प्रमोट किया था एज अ QA मेंटोर, ठीक है। हम दोनों जब किसी एक और कोचिंग का पार्ट थे, ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग से बहुत सारी, ठीक है, तो हम उनमें से किसी एक कोचिंग में पढ़ाते थे दोनों। तो विजय सर तब अपने कॉलेज में जा रहे थे, विजय सर ने FMS क्रैक किया था 2017 है ना सर, या 18 है? 17 का कैट क्रैक किया था ना, हाँ 17 के कैट के थ्रू, तो 18 में जा रहे थे, तब इन्होंने मुझे अपने सारे कैट के बैचेस में प्रमोट किया। तो तब जाके मेरे को लगा यार, मैंने कहा सीनियर फैकल्टी प्रमोट करके जा रहे हैं तो ढंग का पढ़ाना भी पड़ेगा। तब थोड़ा और इन डेप्थ जाना शुरू किया, फिर ऑफलाइन पढ़ाया 3-4 साल। टाइम इंस्टीट्यूट का तुम लोगों ने नाम सुना होगा आई थिंक, है ना? कोई ऑफलाइन वाला भी है क्या? कोई साथ में तो लेके नहीं आया किसी को? ठीक है, फिर कुछ भी बोल सकते हैं ना, रिकॉर्ड मत करना आप लोग। तो 2020 में, मतलब 17 से लेकर 20 पूरा ऑफलाइन जर्नी था वो। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार टीचिंग में मैं कैसे करियर अपना बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिस मतलब सोसाइटी से आता हूँ ना, वहाँ मैं किसी को बोलूंगा कि यार मैं टीचर हूँ, तो वो लोग ना अलग लेवल पे सोचने से शुरू कर देते हैं चीज़ों को कि यार टीचर है, क्या ही कर लेगा ये, ठीक है। बल्कि अगर तुम और नीचे स्किल पे चले जाओगे ना, ट्यूशन वाले भैया हैं तो ठीक है, तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि हाँ मैं ट्यूशन वाला भैया हूँ। तो जिस लेवल पे तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, तुम्हारा बहुत सारे लोगों का अलग अलग पैशन होगा, कई बार तुम शायद उस पैशन को इसलिए छोड़ देते हो यार दुनिया पता नहीं क्या सोचेगी। तो शायद अगर मैं वो सोच के छोड़ देता ना पढ़ाना, क्योंकि मैंने उस बीच टाइम में ना बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ही रहा है। मेरे फादर भी हैं, वो थोड़ा लेट हो गए, आई थिंक थोड़ा लेट में ज्वाइन करेंगे, वो अभी ट्रैफिक में थे तो हम इवेंट को और डिले नहीं कर सकते थे, तो वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मेरे पास था कहीं ना कहीं यार ये भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएगा तो आई थिंक थोड़ा सही रहेगा। फैमिली का रहता है वो माइंडसेट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी फैमिली होगी, अगर आप लोग उनका MBA का बोलते हो तो बोलते हो यार ठीक है ना, तू गवर्नमेंट जॉब कर लेना भाई, हाँ अच्छी खासी लाइफ चल रही है। वो एक स्टेबल लाइफ लगती है मेरे को बहुत ज्यादा, ठीक है, उसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं सोच सकते, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आता रहेगा और लॉन्ग टर्म तक आता रहेगा, मतलब बहुत टेंशन फ्री लाइफ होती है वो, ठीक है। आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है, क्योंकि किसी चीज की टेंशन लेनी नहीं है आपको। तो वो फैमिली का था, मैंने कहा नहीं यार ये तो देखो नहीं हो पाएगा, और वो फिर एक ही जैसा काम लॉन्ग टाइम तक करना तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग यार जब कैट की प्रिपरेशन करा रहे थे 2020 में, तुम्हें पता होगा कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे, कोविड से 2 महीने पहले मैंने रिजाइन कर दिया था ऑफलाइन कोचिंग से। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, होता है ना जब कुछ ना तुम्हें भगवान ने तुमसे कुछ कराना होता है ना, तो वो ना इस तरह के इंसिडेंट क्रिएट करता है। तुम्हें कई बार लगता होगा यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरी लाइफ में क्या हो गया। तो मैंने रिजाइन कर दिया, फिर मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, कोविड में सही बता रहा हूँ, बिल्कुल खाली बैठा था। मेरे पास अनअकैडमी से कॉल आता है कि सर उन्होंने मेरा कंटेंट देखा होगा कहीं पे कि सर हम चाहते हैं आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाओ। और मेरे को बहुत डर था ऑनलाइन पढ़ाने का, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, और मुझे ये भी लगता था ऑनलाइन बच्चा कैसे पढ़ता होगा। तुम देख रहे हो बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की है। फिर पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन पढ़ाना ईजी है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ईजी हो, स्टूडेंट के एंड से भी और टीचर के एंड से भी, दोनों के एंड से अगर चीजें बहुत बड़ी स्मूथ है ना, जैसे तुम लोगों ने लाइव क्लास में हैंड रेज वाला फीचर देखा होगा हमारे यहाँ पे, मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब गैप को फिल कर देता है। तुम लाइव क्लास में हैंड रेज करके तुरंत टीचर से डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। तो फिर अनअकैडमी में पढ़ाया, फिर अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो फिर वही कि अब क्या कर लिया तूने, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गया।
फिर वही तो लिमिटेड चीज़ें कर रहा है। फिर 21 या 22 के स्टार्टिंग में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारे नाम, पहले नाम समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत सारे नाम चेंज किए, ठीक है। फिर सोचा मैंने कहा MBA पाठशाला रखते हैं, थोड़ा बड़ा नाम लगता था, कभी कभी बीच में बहुत बार क्या चेंज कर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब रख ही देते हैं इसको। और MBA स्टार्टिंग में रखने के पीछे रीजन ये था कि क्लैरिटी रहेगी कि एक ही तरह का कंटेंट जा रहा है, कि वो और कुछ माइंड में आएगा ही नहीं पढ़ाने को। तो अब जैसे तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के साथ उनका सिलेबस मैच होता है, ठीक है। वही बैंकिंग का सिलेबस अगर तुम देखोगे, IPMET का नाम अगर तुमने सुना होगा, क्लैट का, ये टॉपिक्स उन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन वर्ड मैं अपनी क्लास में भी यूज करता हूँ, तो मैंने उसको लिटरली वहां पे इंप्लीमेंट किया था कि मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर ये कंटेंट डालना है तो MBA वाला ही डालना है। कुछ वीडियोस बनाई शुरू में, तो वहां से शुरू करा। मैंने कहा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मेरा टारगेट रहता था कि 24 आवर्स में बस मेरी वीडियो पे 100 व्यूज आ जाए तो मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। ये टारगेट रहता था स्टार्टिंग में। शुरू हुआ वो जर्नी, फिर मैंने लाइव क्लासेस लेनी शुरू करी। तब से तुम लोगों को पता होगा, क्योंकि एक बच्चा था आई थिंक क्लास में यहीं पे आज बोल रहा था मैं 22 से आपका कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो तब तो बहुत छोटा यूट्यूब चैनल था हमारा। मेरे को याद है आई थिंक जुलाई 2022 में हम लोगों ने 10K का केक काटा था। तो आज आई थिंक क्या चल रहा है, अभी हमें 3 इयर्स ही हुए हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स का केक काटेंगे, पूरी टीम MBA पाठशाला की। और जब तुम ऑडियंस की बात करते हो ना, ऐसा नहीं है कि इस बीच ये यूट्यूब चैनल सिर्फ 10K से 2 लाख तक पहुंचा है, ठीक है। ये ऑडियंस ही ऐसी है। जो हमारी वाली कैट की ऑडियंस है ना, वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। मतलब ऑडियंस वाला फैक्टर भी मैटर करता है। ये जर्नी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर कभी भी कोई अपना पैशन चूज करोगे ना, आपको लगेगा कि यार मेरे को ये चीज चूज करनी है। तुम्हें बहुत सारे फैक्टर, सबसे पहले बताया यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। पहले तो सबसे पहले तो उनको ही सेटिस्फाई कराना होता है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी मजाक बनाएंगे, सबके बनाते हैं, मेरे भी बनाते थे, ठीक है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मजाक बनाएंगे, सबके साथ होता है। वो कुछ नई चीज नहीं है, उनको तो छोड़ ही दो। उनको तो तुम कुछ टाइम बाद जाके जवाब दे देना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो मत देना। जब तुम कुछ बन जाओगे तो वो खुद समझ जाएंगे ये पागल था शुरू से ही। और वो यही बोलते हैं ये शुरू से ही पागल था, हमें पता था कुछ करेगा ये। बस फिर वो उसको थोड़ा पॉजिटिव एंगल पे स्टॉप कर देता है अपनी बातों को, ठीक है। फिर सितंबर 2023 में हमने स्टार्ट किया था। कोई ऐसा भी है क्या जो तभी से MBA पाठशाला को फॉलो कर रहा है? अच्छा, सितंबर 2023 से, ठीक है। यहाँ पे 5-6 लोग हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं हमारे टेक पार्ट पे भी, हमारे वेबसाइट पार्ट पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, अगर तुमने देखा हो तो। एंड कैट 24 वाला बैच था ना, मैं सही बताऊं तो मैंने कैट 24 वाले बैच में 23 से कम एनर्जी पे काम किया था। मैं अपनी क्लासेस में भी कई बार बोलता था लाइव क्लासेस में कि यार मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हूँ। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो ये जर्नी ऐसी नहीं थी, कैसे स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे भी सुमन मैम है, आपको बताता हूँ। और एक और फैकल्टी थे मेरे पास LRD की स्टार्टिंग में, अगर आपको स्टार्ट पता है शुरू से। तो मैंने इन दोनों को एक दिन पहले फोन किया। मैंने कहा यार मैं कल से अपना लॉन्च कर रहा हूँ, तुम लोग आओगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और अभी कुछ प्लान नहीं बनाया कि हाँ यहाँ से तीनों को मिलके करना है, नहीं करना है। ये लोग आ भी गए, ठीक है। और फ्लाइट से तुरंत आया, अगले दिन मैंने लॉन्च कर दिया। उस दिन गणेश चतुर्थी थी जिस दिन मैंने MBA पाठशाला लॉन्च किया था। 18 सितंबर मेरे को डेट याद है, 2023। फिर वहां से ये जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। मेरे को शुरू में लिटरली ऐसा भी आया कि मैं 1-1 घंटे ही सो पाया हूँ पूरी रात में, ठीक है। मेरे को नींद नहीं आती थी। ऐसा नहीं कि तुम ये बातें बोलने वाली हैं, ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी। तुम अभी जो हमारे अचीवर्स हैं, ये अपने ड्रीम भी स्कूल्स में जा रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि तुम्हें इतना काम तुम्हारे पास है, इतना प्रेशर तुम्हारे लिए, तुम्हें सच में नींद नहीं आएगी अगर तुम उसको सीरियसली लोगे। एक तो होता है कि नहीं यार छोड़ो ना, हो गया ना, नहीं असाइनमेंट सबमिट करूंगा, क्या कर लेगा टीचर मेरा। वो तो उस एटीट्यूड से काम नहीं होगा, चलेगा। अभी चला लोगे काम, फिर बाद में लाइफ में काम नहीं चलेगा। तो वो वहां से शुरू हुआ। बहुत सारे जर्नी है ऐसी, मैं अपनी क्लासेस में कई बार डिस्कस करता हूँ। अभी मैं वो सारी चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, तुम कहोगे भावनाओं में बह गया सर, ठीक है। तो मैं क्लासेस में बच्चों को बहुत बार बताता रहता हूँ वो चीजें। फिर वहां से यार हमारी ये फर्स्ट अचीवर मीट थी। लास्ट ईयर भी हम लोग अचीवर मीट कर सकते थे, लेकिन वो कंप्लीटली मेरे रिजल्ट्स नहीं थे। वो उन रिजल्ट्स पे उन जो हमारे पुराने जो बच्चे थे वो किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ रहे थे।
तो मैंने कहा नहीं, हम जब पूरा कंप्लीट बैच अपना निकालेंगे ना उसके बाद ही हम लोग अचीवर्स मीट करेंगे। इसलिए मैम ने बोला भी था हमारी फर्स्ट अचीवर्स मीट है और मुझे लिटरली बहुत प्राउड हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ये रेशो निकालें कि फला कोचिंग ने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, उनके इतने सिलेक्शंस हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी भी एमबीए पाठशाला नंबर 1 पे होगा। क्योंकि हमने कभी भी कोई इंस्टीट्यूट शुरू होता है ना, स्पेशली कोचिंग में, तो फर्स्ट ईयर बहुत डाइसी रहता है। हर कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। सर ने आगे यूट्यूब पे बोल दिया सर ये कराएंगे, लेकिन वो बातें जब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये वाली चीजें हैं कि यार हमने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए उसमें से जितने अचीवर्स हमारे हुए हैं, अगर आप उसका रेशो निकालोगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि और कोई कोचिंग के हमसे ज्यादा अचीवर्स नहीं होंगे, बहुत सारे कोचिंग ऐसे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स दुनिया में पढ़ा रहे हैं। बट आप लोगों को जो सपोर्ट मिलता है ना यूट्यूब पे वीडियोस के, मैं कभी बोर होता हूँ ना, मैं पुरानी वीडियोस के कमेंट पढ़ने शुरू कर देता हूँ। पुरानी वीडियोस है, उन पे इतना कमेंट आता है, बस इतने बड़े बड़े कमेंट बच्चों ने लिख रखे हैं। ठीक है, अलग ही सुकून मिलता है उनको पढ़ के। सुकून के साथ साथ और वीडियोस अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है। 2023 तक मैं अकेला काम कर रहा था, उसके बाद जब टीम एमबीए पाठशाला बनी, उसके बाद की पिक्चर बिल्कुल अलग है। वो एक अलग पिक्चर थी सितंबर 2023 तक। आज जो हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ कंप्लीटली मेरा रोल नहीं है। ये जो पूरी टीम आपको सुबह से यहाँ पे दिख रही होगी ना, मैं तो बोल भी रहा था, बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कितने में किया ये होटल, मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक दो ने पूछ लिया, मेरी बच्चों के साथ डीलिंग ऐसी, मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने कहा सब कुछ मेरी टीम ने मैनेज किया है। मैं तो यहाँ कल आया हूँ, कल से यहाँ पे हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 10th में को मेरी शादी थी। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने एक हफ्ते तो क्लासेस भी नहीं ली थी, और फिर उसके बाद आगे सारे काम संभाले। तो मुझे हमारी टीम के पास 4 दिन थे अचीवर्स मीट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो 4 दिन में हमने सारा किया। आपको पता भी होगा, आपके फ्लाइट्स के मैसेजेस आपको 3-4 दिन पहले ही आए होंगे कि फ्लाइट बुक हो गई है। तो ये बहुत कम टाइम में हमने इवेंट किया है। हो सकता है हमसे थोड़ी कुछ, किसी को कुछ बुरा लग जाए इवेंट के बाद, किसी को कुछ अच्छा लग जाए, तो फीडबैक जरूर देके जाना। ठीक है, शुभम सर को आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे फीडबैक। ठीक है, तो ये है। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इवेंट के बाद में दोबारा दिख जाऊंगा तुम लोगों को घूमता हुआ। अभी हम इवेंट का फ्लो मेंटेन रखते हैं। ठीक है करिश्मा मैम। Thank you so much, Udit sir, for sharing priceless moments and snippets of your wonderful journey. मुझे रियलाइज हुआ सर ने काफी डीडीपी शेयर कर दिया है। डीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? दुख दर्द पीड़ा को आपको बदलना है डिटर्मिनेशन और डिलीजेंस और परसिस्टेंस में। और क्या पता फिर अगले साल आप भी अचीवर्स मीट में बैठे हो एज एन अचीवर, राइट? मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सब कुछ करवा लिया, खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। मैं भी थोड़ा सा फास्ट शेयर करूंगी, बहुत छोटा सा। 2010 में मैंने आखिरी बार एंकरिंग करी है। तब एंकर बोलते थे, तब हम ऐसे स्टेज पे जाते थे और हम बोलते थे आई एम योर होस्ट एंड दोस्त करिश्मा वनमानी फॉर द इवनिंग। अब कोई होस्ट बोलता ही नहीं, दोस्त घोस्ट कर लेते हैं। एंड आई होप दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फन विद मी। टू बिगिन विद द फन, we are going to have a very quick game जिसका नाम है पहचान कौन। How many of you have seen the original guy जिस पर ये मीम बना है पहचान कौन? किसी ने नहीं। इससे पता चलता है कि मेरा जो एज है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और बच्चे हर साल छोटे होते जा रहे हैं। तो जब मैं टीनेजर थी तो एक शो आता था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, मेरे सब मुझसे छोटे हैं शो। कोई है जिसको पहचान कौन का कैरेक्टर याद है? थैंक यू। तो वो वेंट्रिलोक्विज्म करता था। कहाँ है मेरे VRC वाले? वेंट्रिलोक्विज्म जो पपेट से बात करवाते हैं। सो इन दिस पहचान कौन गेम मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगी जो मुझे आप ही लोगों ने दिए हैं और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि टीचर कौन है। ठीक है, डन? ओके। लिटरली किसका तकिया कलाम है? जोर से बोलो। जय माता दी नहीं बोलना था। लिटरली सुदिन सर। ऑलराइट, व्हाट अबाउट hi guys, please confirm if you're audible. First of all, welcome to MBA Pathshala. Let's look at this particular set. FMS क्यों छोड़ा? I have my reasons. बकवास करने का मौका ही नहीं देता है फोन। ठीक है, और okay, right. Have you ever wondered how can we solve this RC? Himanshu sir, of course,
एब्सोल्युटली पतंग लूट ली। थैंक यू। एक ही बच्चा बोल रहा है, पुराने बच्चों को नहीं पता है। इससे साबित होता है कि मैं नई दुल्हन हूँ अभी भी यहाँ पर। कोई बच्चे नहीं है मेरे, सब पुराने वाले मेरे बच्चे छूट गए पीछे। तब तक मैं चाहती हूँ कि 2025 वाले बच्चे जितने हैं, प्लीज गिव मी 3 cheers और 1 cheer एटलीस्ट। 2025 ऑलराइट। ये जो तुम्हारे पास बैठे हैं ना टॉपर्स, इन्हें गौर से देखो, अच्छे से देख लो। ये वही बच्चे हैं जो पिछले साल बोलते थे आई डिडंट प्रिपेयर मच यार, मेरी अभी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है। और फिर अगर आप उनको डीएम करेंगे तो कहेंगे यू नो व्हाट, आई थिंक दैट द आरसी डिस्कस टुडे वाज काइंड ऑफ डिस्पैशनेटली एनालिटिकल, व्हाट डू यू थिंक? तो तुमको तभी समझ जाना चाहिए टॉपर मटेरियल कहाँ से आ रहा है। और तो और पाठशाला के टॉपर्स ब्रेक्स नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं स्ट्रेटेजिक मेंटल डिटॉक्स टू एनहांस देयर कॉग्निटिव एजाइलिटी। अगर तुम्हारा ये लेवल नहीं है तो फिर तुम टॉपर किस बात के? तो फाइनली इन कंक्लूजन, toppers are brilliant, toppers are driven, and they are terrifyingly competitive. More than that, you are proof that MBA Pathshala doesn't just create toppers, we create people who do LRDI sets and RCs for fun. That's a hobby. Yes or no? Cheers for the toppers themselves. Alright, Kankan, are we ready? Alright. QA एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें x की वैल्यू पता लग जाए तो दुख नहीं होता, खुशी होती है। लाइफ में x की वैल्यू पता चल जाए तो स्टॉकिंग गेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थेरेपी लेनी पड़ती है। तो QA के फैकल्टी मेंबर से शुरुआत करते हैं। उदित सर को फिर से स्टेज पर बुलाऊंगी शुरुआत के कुछ अवार्ड्स हमारे अवार्डीज को देने के लिए। आइए ऑलराइट, सो वी आर डूइंग दिस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम पहले आया और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम बाद में आया। एंड तक ताली बजवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन विद अभिषेक कले। प्लीज कम ऑन स्टेज। कैन यू प्लीज बी लाउडर विद योर क्लैप्स? थैंक यू। यू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। क्लैप हार्ड। अभिषेक is going to SCMHRD and he's our student from the Comets batch, SNAP and NMAT 2024. Next is Aditya Lilani, who has converted I am Rachi and I am Kashipur. And congratulations Aditya. Next up is another Aditya, Aditya Vamsi please. Converted ISB, XLRI. Yes, please come up, there's Reen. XLRI Jamshedpur. Chanakya batch again. Amish Anand. I am Ranchi, Trichy, SMHRD. I am Bodhya. Aniket Gore, Lakshya batch. I am Trichy. Nagpur, Bodhya, Sirmaur, Sambalpur. सब छोड़ डाला है। Ankita Verma. She's going to IIM Indore but has also converted Rohtak, Amritsar, Sambalpur, Bodhgaya and Sirmaur. She's from the Ekadamya batch. We'll take a break from the awards here and I would like to call upon stage and felicitate Udit sir's honorable parents who are now amidst us, Banesh uncle and Shanti. Please come on stage. We would like to begin with Anuj Jain, who has converted I am Urya. Who are Institute of Management, IIT Ghaziabad, IIM New Delhi. He took our SAT, Post batch and Quantitative Aptitude batch. Anushka Agarwal, IIM Delhi, IIT Ghaziabad, Arjuna batch. Arpal Saxena, please come on stage. I am Kashipur, I am Visakhapatnam. It's finally Chanakya batch. Ashish Pandey, I am Trichy, Ranchi, Nagpur, Chanakya batch. SIPM.
The stage is all yours. Before I actually start this LRT and everything, आप मेरे से हमेशा पूछते हो ना कि ये मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, मैं आपको सिंपल आंसर दे रहा हूँ एंड वेरी ऑनेस्टली ये सब मोमेंट्स के लिए छोड़ा है मैंने. तो थोड़ा सा पढ़ाई कर ली है, आज तो ब्रेक है सबका एंड दिस फ्लोर इज ओपन टू एवरीवन आई गेस. 25 24 दोनों के लिए करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, 2-3 पजल्स करेंगे. सो छोटे पजल्स हैं, अभी स्क्रीन में मत लाना है. 2-3 पजल्स हैं एंड आई विल आस्किंग द क्वेश्चंस एंड ऑडियंस में से विल हैव टू रेज हैंड. लैटरल थिंकिंग के पजल्स है, थोड़ा बेसिक रीजनिंग इन्वॉल्व होने वाली है तो अपने दोनों तीनों पजल्स में. सो जैसे क्वेश्चंस अपने पास स्क्रीन पे आएगा, आई विल आल्सो रीड दैट अलाउड एंड यू सिंपली हैव टू रेज योर हैंड. जिसका भी, अब ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन चांसेस बट यू नेवर नो, जिसका भी पहला करेक्ट आंसर आएगा ही और शी विल गेट अ गिफ्ट वाउचर. नाइस, यस. Can we have the first question on the screen? Puzzle 1. I'll read that aloud जिसको भी अभी नहीं दिख रहा है. A lotus grows inside a lake and that lotus flower doubles every day. ठीक है, तो हर चीज क्या होता है हर दिन into 2 हो रहा है. Fine. It takes 100 days to completely cover that lake. So 100 days में आपका 100% पूरा lake क्या हो गया, cover हो गया. How much time will it take to cover half of the lake? Please raise your hands. Perfect, perfect, good start. Please can you have me? Thank you, sir. थोड़ा पजल की इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे. Can we have the second puzzle? चलो, I'll read this. थोड़ा सा एफर्ट लगने वाला है, थोड़ा मेंटल क्रंचिंग इन्वॉल्व होने वाली है. So suppose you are blindfolded. ठीक, in front of you are 100 coins lying flat on a table. So तुम्हारे पास क्या है, 100 coins रखे हुए हैं टेबल पे. Exactly 10 of them are heads up and the rest, that is 90 are tails. तो 100 coins में से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि 10 पे आपका heads है and remaining 90 पे क्या आपका tails है. ठीक, you can touch, right? You can flip and move the coins. Now when I actually say touch, you cannot feel whether this is head or tails. ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर करके चलेंगे. ठीक है, you can simply touch, मतलब आप उठा सकते हो कॉइन को, then you can flip it also and then you can also move the coins, but you cannot see them or feel them which side is up. Exactly जो भी मैंने आपको समझाया. Now the task, ये मेन है आपका. The task is to split the coins into 2 groups, any number each. तो दोनों जो आपके piles क्रिएट होंगे या फिर ग्रुप के जो साइज है, they can be of different sizes. The number of coins can vary in the 2 piles such that both the groups have the same number of heads. How will you accomplish this? कैसे आप ग्रुप्स को डिवाइड करोगे to ensure कि दोनों piles में equal number of heads आ जाए? Anyone? ट्राई करते आगे यहाँ पे है ना? मोटिवेशन साथ में है वैसे उसके. Hello. Sir, I believe that all of them will have the same number of heads regardless of if it's on the top or not. So we can just. You have to distribute them. Who was it? कहाँ से? अच्छा, can please stand up. 2 piles में डिवाइड करना है. How do you ensure कि दोनों piles में same number of heads है? So the number of heads will be the same regardless, I believe. Or are we supposed to bring it on top? Like the. Yes, obviously. When we say our coin is facing heads up, it simply means that top face is facing heads, right? नहीं तो फिर toss का कोई point नहीं बचेगा. Every person will get something up here. No. Anyone else? थोड़ा सोचो, पेन पेपर सामने रखा हुआ है. आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ. ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं. किसी क्लास में उसको डेफिनेटली डिस्कस कर रहे होंगे. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बेसिक अरिथमेटिक एक्चुअली इन्वॉल्व है. द स्वीट एंड सिंपल आंसर इज 2 piles बना लो रैंडमली. ठीक है, दिस इज ऑल व्हाइल यू आर एक्चुअली ब्लाइंडफोल्डेड, सो वी कैन लर्न आल्सो. 2 piles क्रिएट करने हैं. एक पाइल में टेक एनी रैंडम 10 coins, दूसरे पाइल में रैंडमली अपने पास 90 coins बचेंगे. यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग. ठीक, एक पाइल में 10 coins, दूसरे पाइल में आपके पास 90 coins.
नाउ जो भी छोटा वाला पाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 कॉइंस वाला, उसको क्या कर दो, सारे कॉइंस को बस फ्लिप कर दो। सारे कॉइंस फ्लिप कर दोगे छोटे वाले पाइल में, ऑटोमेटिकली आपका जो छोटा वाला पाइल है और जो बड़ा वाला पाइल था उसमें नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नाउ इट इज योर टास्क टू थिंक हाउ इट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। बस यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपको समझ में आ जाएगा। दैट वाज द सेकंड पजल। शैल वी डू वन मोर? यस सर। बोर तो नहीं हो गए? तो एलआरडी में तो मेहनत लगता है यार, इट्स लाइक कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, मेहनत तो लगेगी। लेट्स फाइंड वन मोर पजल। अगर कभी किसी ने करा है या फिर ऑन द स्पॉट सोच सकता है, काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक, इफ यू कैन क्रैक दैट। वी कैन हैव द थर्ड पजल ऑन द स्क्रीन। यू आर इन अ रूम विद टू डोर्स, दो दरवाजे हैं तुम्हारे पास, एक रूम में आप घुसे। One leads to a certain death. Certain death मतलब एक दरवाजे के पीछे मौत छुपी है तुम्हारी, not literally. The other to the freedom. तो एक दरवाजा is safe, एक दरवाजा is death. Simple. Each door has a guard. दोनों दरवाजों पे एक एक गार्ड खड़ा है, राइट? इस दरवाजे पे भी एक गार्ड है, दूसरे दरवाजे पे भी आपका एक गार्ड है। One guard always tells the truth, the other always lies. तो एक दरवाजे के सामने जो गार्ड खड़ा है वो हमेशा सच बोलता है, दूसरे दरवाजे के सामने जो गार्ड खड़ा है he always lies. You can ask one question to one guard. किसी भी गार्ड को आप पिक कर सकते हो, doesn't matter. रुक जा, क्वेश्चन बता लेना। तो you can ask one question to one guard. Who do you ask to choose the door to freedom, and what that question will be specifically? Yes. Name please. सर ऐसा कर सकते हैं कि एक गार्ड को मार दे, दूसरा पूछे कि मारी क्या क्यों नहीं। Lateral thinking वाला इतना भी नहीं था। सर Yes. हमारे सामने दो गार्ड हैं, हम एक से पूछेंगे कि अगर हम तुम्हारे साथ वाले से पूछें कि फ्रीडम का रास्ता कौन सा है, तो अगर तो हमने जिससे पूछा वो सच्चा हुआ तो वो बता देगा कि डेथ की तरफ पॉइंट कर देगा, क्योंकि जो सच्चा है वो बता देगा कि तुम अगर मेरे साथ वाले से पूछोगे फ्रीडम का रास्ता तो वो डेथ की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये हमें ये बता देगा कि वो डेथ की तरफ पॉइंट कर देगा। And what if we would have asked the other guy? अगर हम वही बता रहा हूँ, अगर हमने झूठे वाले से पूछा कि फ्रीडम का रास्ता कौन सा है तो वो ऑलरेडी झूठ बोलता है, तो वो भी डेथ की तरफ पॉइंट कर देगा। तो इससे जो भी दोनों हमें डेथ की तरफ पॉइंट कर देंगे, हम फ्रीडम की तरफ चलते हैं। Good, Simon, ladies and gentlemen, that's the correct answer. Ajay. So that will be all from my side. Have a great evening. लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे उम्मीद है कि वो लोग टेलीग्राम से निकलकर कुछ ऐसा रिजल्ट लेकर आए कि फिर बात कुछ इंस्टाग्राम तक पहुँचे, है कि नहीं? आमीन। All right. Now I would like to do the next set of awards, and for the next set of awards, I would like to call somebody who has taught you that at MBA Pathshala we don't teach reading comprehension. We emotionally damage you with Greek philosophy passages, and we call it personality development. So calling up on stage my very esteemed VRC colleague, Mr. Himanshu sir. We'll start with Ishika Gumbe. भाई लड़कियाँ, तालियां हैं लड़कियों के लिए। Next up is Ishita Rana. IIM Amritsar, Sirmaur, Bodh Gaya, IMT Ghaziabad, XIM Bhubaneswar. That's the batch. Next up is Ishita Kalia, SP Jain, SCMHRD. She's going to SP Jain. She's from the Arjuna batch. Kumar, IIM Amritsar, Arjuna batch. Can you please keep clapping? Very encouraging. Next up is Karthik. IIM Kashipur, Bodh Gaya, Sirmaur, Sambalpur, Arjuna batch.
city, ex-city. I am Ranchi, Bodh Gaya, Jammu, Sirmaur, IIT Ghaziabad, Lakshya batch. इसी बार पर आप लोग को एक छोटा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप दे देती हूँ. किसी का भी दिल जीतना हो तो उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस करिए जैसे वो चाहता है. मेहुल गोयल, SCMHRD, SIMN Bangalore, QA बैच. बोलते हैं ना गांव में ट्रकों पे बोर्ड लगा हुआ होता है कि औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है. वो एक्चुअली सच है, उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रक के पीछे लिखने से काम नहीं चलेगा. आपके साथ जो लड़कियां पढ़ती हैं, आपकी फैमिली में जो लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी पढ़ाई में आप हेल्प करिए एज मैन. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देम. डाउरी बाउरी को अरेंज कर लेंगे, एलिमनी भी कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना. ठीक है, तो लास्ट राउंड ऑफ अवार्ड्स के लिए मैं एक ऐसे टीचर को बुलाना चाहूँगी जिसकी क्लासेस में मिलता है कॉम्प्रिहेंशन, सरकाजम, थोड़ा सा स्टेज प्रेजेंस, डार्क जोक्स और अल्टीमेटली ये कि ओवर थिंकिंग एक लाइफस्टाइल कैसे बन सकता है. मतलब लास्ट अवार्ड मैं खुद दूँगी. So I would first call upon Nabil. I am Raipur, Arjuna batch. Piyush Kumar, I am Nagpur, Bodh Gaya, Arjuna batch. Guru Chitkara, NMS Mumbai, QA batch 1 and NITA batch. Vidura, I am Bodh Gaya, TIS Mumbai, Arjuna batch. Vishesh Kumar, I am Trichy, GDPI at VAT batch. Yash Bansal, IMT Ghaziabad, Lakshya batch. एक अचीवर ऐसा भी है जिसने CMAT 2025 का एग्जाम दिया था and he got all India rank 26. तो शुभम मुंजान, इसका 99.96 परसेंटाइल है CMAT में. हमारे पास अभी और भी लर्नर्स हैं कुछ ऐसे जिनका टॉप 20 स्कूल्स में कन्वर्ट हुआ है बट वो अभी अवेलेबल नहीं है. तो एक बार आप स्लाइड दिखा दीजिए, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको. अमल शम्स जिनका IIM अहमदाबाद हुआ है, अपेक्षा, सूरज, उजल, आरिश, खुशाल, अमेय, अक्षत, अमीज, ज्योतिषमय, खुशी. तो इन सब के जो अवार्ड्स हैं हम लोग इनके घर पे डिलीवर कर देंगे. तो अगर इनमें से आपको कोई फ्रेंड है तो आप बता देना, उसको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. थोड़ा जोर से बता दो तो 8-10 हैं. लास्ट ईयर आपने देखा होगा हम लोगों का सबसे लास्ट बैच जो था वो चाणक्य बैच था. जो कैट 2025 वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे रिजल्ट थे चाणक्य बैच से. रीजन ये नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि चाणक्य बैच वाले बच्चों को 6 महीने से हम नहीं पढ़ाया है. ठीक है, मैं क्लास में बोलता हूँ कोचिंग का रोल 20% है, 80% रोल आप लोगों का है. किस लेवल पे आपने पढ़ाई करी है यार. कोचिंग तो हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को दी थी ना, सारे के सारे अचीवर्स तो नहीं बने. तो ये भी तो एक रियलिटी है. लेकिन अब मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना तो लास्ट के 6 महीने अगर आपने सीरियसली होके पढ़ लिया तो फिर सही है. मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 1.5 साल पहले कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं. जैसे हम लोग का जो कैट 25 का बैच बन था वो अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो गया था. अक्टूबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक पूरा अपने आप को मेंटेन रखना बहुत लंबा टाइम हो जाता है. ठीक है, और कहानी सिर्फ नवंबर में खत्म नहीं होती ना. अगर मैं अभी एक बच्चे का एग्जांपल लूं, IIT गाजियाबाद इस बच्चा कन्वर्ट हुआ, तो मैं इससे बात कर रहा था
इसको और भी अच्छे कॉलेज से कॉल थी, बट इसने कैट के तुरंत बाद चिल किया, इसने जीडीपी को सीरियस लिया ही नहीं और इसकी एक सिंगल कॉल कन्वर्ट नहीं हुई। लास्ट में जाके इसका IIT गाजियाबाद कन्वर्ट हुआ। तो लास्ट के 6 मंथ की प्रिपरेशन को मेंटेन रखना, जो भी कैट 25 वाली ऑडियंस है इस बार की, ठीक है, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो कैट 6 मंथ में, अगर आप बहुत ही फोकस्ड होके काम कर रहे हो, डिसिप्लिन होके काम कर रहे हो, क्लासेस स्किप मत करो, कोई स्किप होती भी है तो वीकेंड पे उसको कवर करो, ये काम आपको करना पड़ेगा। एंड वी और मैं एक बार टीम MBA पाठशाला बुला लेता हूँ, हिमांशु सर, विजय सर, मोहित सर, मुकेश सर। Louder, guys. एंड ऑफ द इवनिंग और इंडिया वाले तो हम शुरुआत भी मीठे से करते हैं और अंत भी मीठे से करते हैं। सो आई वुड नॉट गिव यू अनदर लेक्चर, आई विल नॉट गिव यू मोटिवेशन and I will not take much of your time. I know a lot of you are tired. I would just want to thank all of you कि आप लोग ट्रैवल कर कर आए। तो अगर आप मिलने आए हैं अपने टीचर्स से, तो ये टीचर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे बच्चे मिलना और ऐसे टीचर्स मिलना दोनों ही बहुत मुश्किल है। मैंने बचपन में सीखा है, किसी क्लास में भी जिक्र किया होगा, आज फिर से दोहरा रही हूँ। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु पर सब कुछ न्यौछावर कर दे, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से फूटी कौड़ी न ले। तो इस शिष्य गुरु की परंपरा को हम जितना संभाल के रख सकते हैं, संजो के रख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। MBA पाठशाला आपको कंटेंट दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, PDF दे सकता है, क्लासेस दे सकता है। रिश्तेदारों के सवालों से कैसे जूझना है उसकी ट्रेनिंग आपको खुद देखनी पड़ेगी। अंत में आई वुड लाइक टू जस्ट से a few lines from one of my favorite songs and end the evening. I would also like to thank the MBA Pathshala team for giving me this chance of hosting the event. So saying those lines in front of you, कल और आएंगे लम्हों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। नाम करिश्मा बनवानी है। थैंक यू। Let's cut the cake, let's have a blast, let's talk to each other, have some fun, click lots of pictures and make this a memorable evening. Join us for the cake cutting ceremony, please. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself with your But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me, MBA की बेस्ट पाठशाला